Peripheral neuropathy is nerve damage disorder that typically causes pain in your hands and feet. Regular exercise is one of the most important lifestyle modifications that can reduce neuropathy pain and improve muscle strength. Exercise to be shown here can be performed at home. Does not require gym equipment and are recommended by physiotherapy experts. Let's look what exercises you can do. Aerobic exercises move large muscles, help to breathe deeply, increase blood flow to the peripheral regions, act as natural painkillers. Aerobic exercises include brisk walk and bicycling. They should be routinely performed for 30 minutes a day, at least 3 days a week. Balance training can build your strength and reduce feelings of tightness. Improved balance also prevents falls. Balance training exercise 1. Side leg raise. Using a chair or counter, steady your balance with one hand. Stand straight with feet slightly apart. Slowly lift one leg to the side and hold for 5 to 10 seconds. Lower your leg at the same pace. Repeat with the other leg. As you improve balance, try this exercise without holding onto the counter. Balance training exercise 2. Calf raise. Using a chair or counter, steady your balance. Lift the heels of both feet off the ground so you're standing on your toes. Slowly lower yourself down. Repeat for 10 to 15 times. Balance training exercise 3. Wall push-ups. Face a wall, standing a little farther than arm's length away. Feet shoulder width apart. Lean forward and put your palms flat against the wall at shoulder height and shoulder width apart. Slowly bend your elbows and lower your upper body toward the wall. Keep your feet flat on the floor. Pause. Slowly push yourself back until your arms are straight. Repeat 10 to 15 times. Balance training exercise 4. Step-ups. Stand next to a handrail at the bottom of a staircase. With your feet flat and toes facing forward, put your entire left foot on the first step. Hold the handrail for balance. As you count to 2, place your weight on your left leg and straighten it as you slowly lift your right leg until it reaches the first step. Let your right foot tap the first step near your left foot. Pause. Repeat 10 times. Repeat 10 times with the other leg. Balance training exercise 5. Knee curl. Stand behind a study chair, holding on for balance. Lift one leg straight back without bending your knee or pointing your toes. Breathe in slowly. Breathe out as you slowly bring your heel up toward your buttocks as far as possible. Bend only from your knee and keep your hips still. The leg you are standing on should be slightly bent. Hold position for 1 second. Breathe in as you slowly lower your foot to the floor. Repeat 10 to 15 more times with each leg. Stretching increases your flexibility and warms up your body for other physical activity. Stretching exercise 1. Calf stretch. Stand facing a wall. Place your hands on the wall. Take a step forward with right foot and slightly bend the knee. Lean your hips toward the wall. Keep your back leg straight, heel on the floor. Hold position for 15 to 20 seconds. Repeat 3 times per leg. Stretching exercise 2. Seated hamstring. Select a firm surface to sit upon. Extend one leg out onto the surface. Slowly lean forward. Reach for your thigh, knee or ankle. Hold for 20 to 30 seconds. Repeat 3 times per leg. Stretching exercise 3. Ankle stretch. Sit on the front edge of a chair.
The chair should have an unobstructed underneath section. Bring your right foot under the chair. Gently push down on your foot until a stretch is felt. Hold for 20 to 30 seconds, then repeat with the left foot. Stretching exercise 4. Inner thigh stretch. Stand with chair support. Bring feet apart as far as comfortable. Bend knees out to the side and pause. Hold for 10 to 20 seconds. Repeat this stretch 2 more times. Stretching exercise 5. Hip rotation. Sit comfortably in your chair. Cross your right ankle onto your left knee. Gently press down on your knee until a stretch is felt. Hold for 10 to 20 seconds. Repeat with your left leg. Stretching exercise 6. Soleus stretch. Stand facing a wall. Place your right foot in front of the left. Place hands on wall for support. Slowly bend your knees until a stretch is felt. Keep your heels on the floor. Hold for 10 to 20 seconds. Repeat with the left leg in front of right. Doing proper and regular exercises along with medication is advantageous for managing neuropathic pain. Mild pain is normal after stretching and regular exercise. However, if your pain worsens or if you develop joint swelling, contact your doctor. पेरिफेरल न्यूरोपैथी चेता तंतुओं की क्षति के कारण हाथों और पैरों में होने वाला दर्द है। नियमित व्यायाम जीवन शैली में परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो न्यूरोपैथी दर्द को कम कर सकता है और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। यहाँ दिखाए जाने वाले व्यायाम घर पर किए जा सकते हैं। किसी जिम उपकरण की आवश्यकता नहीं है और फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों द्वारा इनकी सलाह दी जाती है। आइए हम देखें कि आप कौन से व्यायाम कर सकते हैं। एरोबिक व्यायाम बड़ी मांसपेशियों में हलन चलन करवाता है, गहरी सांस लेने में मदद करता है, परिधीय क्षेत्रों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में कार्य करता है। एरोबिक व्यायामों में तेज चलना और साइकिल चलाना शामिल है। इन्हें नियमित रूप से दिन में 30 मिनट, सप्ताह में कम से कम 3 दिन किया जाना चाहिए। संतुलन व्यायाम ताकत बढ़ाता है, जकड़न के एहसास को कम करता है और गिरने से बचाता है। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 1, बाजू से पैर उठाना। कुर्सी या काउंटर का उपयोग करते हुए एक हाथ से स्थिर संतुलन बनाएं। पैरों को थोड़ा अलग करके सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे एक पैर को बाजू से उठाएं। 5 से 10 सेकंड के लिए रुकें। अपने पैर को उसी गति से नीचे करें। दूसरे पैर से भी दोहराएं। जब आप अपने संतुलन में सुधार कर लेते हैं, तब काउंटर को पकड़े बिना इस व्यायाम का प्रयास करें। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 2, पिंडली उठाना। कुर्सी पर स्थिर संतुलन बनाएं। अपनी एड़ी उठाएं, पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे नीचे करें। 10 से 15 बार दोहराएं। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 3, दीवार के सहारे पुशअप्स। हाथ की लंबाई से थोड़े दूर दीवार की तरफ मुंह करते हुए खड़े हों। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूर रखें। आगे झुकें और अपनी हथेलियों को कंधे की ऊंचाई और चौड़ाई के बराबर दीवार पर सपाट रखें। धीरे धीरे अपनी कोहनी मोड़ें और अपने ऊपरी शरीर को दीवार की ओर झुकाएं। अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें। रुकें। धीरे धीरे अपने आप को पीछे धकेलें जब तक कि आपकी भुजाएं सीधी न हो। 10 से 15 बार दोहराएं। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 4, स्टेप अप्स। सीढ़ी के नीचे रेलिंग के बगल में खड़े हो जाएं। अपने पैरों को सपाट और पैर की उंगलियों को सामने रखते हुए अपने बाएं पैर को
पहली सीढ़ी पर रखें। संतुलन के लिए रेलिंग को पकड़ कर रखिए। 2 तक गिनने के बाद अपने वजन को अपने बाएं पैर पर रखते हुए इसे सीधा करें। धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को उठाएं जब तक कि यह पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाए। अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के पास पहला कदम टैप करें। रुकें, 10 बार दोहराएं। दूसरे पैर के साथ 10 बार भी दोहराएं। संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम 5, घुटने मोड़ना। एक मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसे संतुलन के लिए पकड़ें। अपने घुटने को झुकाए बिना या अपने पैर की उंगलियों को बिना मोड़े एक पैर को सीधे पीछे उठाएं। धीरे धीरे सांस अंदर लें। जितना हो सके धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपनी एड़ी को अपने नितंब तक ले जाएं। केवल अपने घुटने से झुके और अपने कूल्हों को स्थिर रखें। जिस पैर पर आप खड़े हैं वह थोड़ा मुड़ा होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए इस स्थिति पर रुकें। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैर को नीचे फर्श पर लाएं। प्रत्येक पैर के साथ 10 से 12 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है, अन्य गतिविधियों के लिए शरीर को ऊर्जावान करता है। स्ट्रेचिंग व्यायाम 1, पिंडलियों की स्ट्रेचिंग। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। अपने हाथों को दीवार पर रखें। दाहिने पैर से 1 कदम आगे बढ़ाएं और घुटने को थोड़ा मोड़ें। अपने कूल्हों को दीवार की ओर झुकाइए। अपने पिछले पैर को सीधा करें। एड़ी को फर्श पर रखें। 15 से 20 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। दोनों पैरों से 3 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 2, बैठकर हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। बैठने के लिए एक दृढ़ सतह का चयन करें। एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। अपनी जांघ, घुटने या टखने तक पहुंचे। 20 से 30 सेकंड तक रुकें। दोनों पैरों से 3 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 3, टखने की स्ट्रेचिंग। एक कुर्सी के सामने किनारे पर बैठें। कुर्सी के नीचे का हिस्सा खाली होना चाहिए। कुर्सी के नीचे अपना दाहिना पैर लाएं। खिंचाव महसूस होने तक धीरे से अपने पैर को नीचे दबाएं। 20 से 30 सेकंड तक रुकें। फिर बाएं पैर से दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 4, भीतरी जांघ की स्ट्रेचिंग। कुर्सी के सहारे खड़े हो जाएं। आराम से जहां तक हो सके पैरों को उतना दूर रखें। घुटनों को साइड की ओर झुकाएं और रुकें। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। इस स्ट्रेच को 2 बार दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 5, कूल्हे को घुमाना। आराम से अपनी कुर्सी पर बैठें। अपने दाहिने टखने को अपने बाएं घुटने पर रखें। खिंचाव महसूस होने तक अपने घुटने पर धीरे से दबाएं। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। अपने बाएं पैर के साथ दोहराएं। स्ट्रेचिंग व्यायाम 6, सोलियर स्ट्रेच। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। अपने दाएं पैर को बाएं पैर के सामने रखें। सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखें। खिंचाव महसूस होने तक धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें। अपनी एड़ी को जमीन पर रखें। 10 से 20 सेकंड तक रुकें। बाएं पैर को दाएं पैर के सामने रखकर दोहराएं। न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए दवा के साथ साथ उचित और नियमित व्यायाम करना फायदेमंद है। व्यायाम के बाद हल्का दर्द होना सामान्य है। यदि दर्द बढ़ता है या जोड़ों में सूजन होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। पेरिफेरल न्यूरोपॅथी हा एक मज्जातंतूचा आजार आहे ज्यामुळे आपले हात आणि पाय दुखतात। नियमित व्यायाम हा जीवनशैलीतील एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे ज्यामुळे न्यूरोपॅथीचा त्रास कमी होतो आणि स्नायूंची मजबूती सुधारू शकते। येथे दर्शवलेले व्यायाम घरी केले जाऊ शकतात आणि या व्यायामासाठी जिम उपकरणांची आवश्यकता नाही। फिजिओथेरपिस्ट या व्यायामाची शिफारस करतात। आपण काय व्यायाम करू शकता ते पाहू। एरोबिक व्यायामामुळे मोठ्या स्नायूंचा वापर होतो आणि दीर्घ श्वास घेण्यास मदत होते। यामुळे शरीराचा रक्तप्रवाह गौण भागात वाढतो आणि नैसर्गिकरित्या वेदना कमी होते। एरोबिक व्यायामाचे प्रकार म्हणजे
वेगाने चालणे आणि सायकल चालवणे. ते नियमितपणे आठवड्यातून किमान 3 दिवस 30 मिनिटे केले पाहिजेत. समतोल प्रशिक्षण आपली शक्ती वाढवू शकते आणि घट्टपणाची जाणीव कमी करू शकते. सुधारित समतोल पडण्यापासून वाचवते. समतोल प्रशिक्षण व्यायाम 1. बाजूने पाय उचलणे. खुर्ची किंवा काउंटर वापरून एका हाताने आपला तोल स्थिर करा. पायात थोडेसे अंतर ठेवून सरळ उभे राहा. हळूहळू एक पाय उचला आणि 5 ते 10 सेकंद धरून ठेवा. त्याच वेगाने आपला पाय खाली करा. दुसऱ्या पायाने पुन्हा करा. आपण संतुलन सुधारत असताना हा व्यायाम काउंटर न वापरता करून पहा. समतोल प्रशिक्षण व्यायाम 2. पोटरी उचलणे. खुर्चीवर स्थिर संतुलन ठेवा. टाच उचलून बोटांवर उभे राहा. हळूहळू खाली वाका. 10 ते 15 वेळा पुन्हा करा. समतोल प्रशिक्षण व्यायाम 3. भिंतीवरील पुशअप्स. भिंतीसमोर एका हाताची लांबी सोडून उभे राहा. दोन्ही पायांमध्ये खांद्यांच्या रुंदीनुसार अंतर ठेवा. पुढे वाकून आपले तळ हात खांद्यांच्या उंचीप्रमाणे भिंतीवर ठेवा. हळूहळू आपलं कोपर वाकवा आणि आपले वरचे शरीर भिंतीकडे वाकवा. आपले पाय सपाट ठेवा. विश्रांती घ्या. आपले हात सरळ होईपर्यंत हळूहळू आपल्या शरीरास मागे ढकला. 10 ते 15 वेळा पुन्हा करा. समतोल प्रशिक्षण व्यायाम 4. जिन्यावरील व्यायाम. जिन्याच्या पायथ्याशी रेलिंगच्या पुढे उभे राहा. आपले पाय सपाट आणि बोटं सरळ ठेवून आपला डावा पाय पहिल्या पायरीवर ठेवा. समतोल ठेवण्यासाठी रेलिंग धरा. 2 पर्यंत मोजल्यावर आपले वजन आपल्या डाव्या पायावर टाकून तो सरळ करा आणि सोबतच आपला उजवा पाय हळुवारपणे उचलून पहिल्या पायरीवर ठेवा. आपल्या उजव्या पायाला आपल्या डाव्या पायाजवळ येऊ द्या. विश्रांती घ्या. 10 वेळा पुन्हा करा. हा व्यायाम आपल्या दुसऱ्या पायाने 10 वेळा पुन्हा करा. समतोल प्रशिक्षण व्यायाम 5. गुडघ्याचं वर्तुळ. संतुलनासाठी मजबूत खुर्चीला धरून उभे राहा. आपला गुडघा न वाकवता एक पाय सरळ मागे घ्या. हळूहळू श्वास घ्या. आपली टाच आपल्या पार्श्वभागाकडे शक्य तितक्या जवळ आणताना हळूहळू श्वास सोडा. फक्त आपल्या गुडघ्यापासून वाका आणि आपला पार्श्वभाग स्थिर ठेवा. आपण ज्या पायावर उभे आहात तो किंचित वाकलेला असावा. 1 सेकंदासाठी स्थिर राहा. हळूहळू श्वास घेत आपला पाय जमिनीवर ठेवा. प्रत्येक पायाने 10 ते 15 वेळा पुन्हा करा. ताणण्याच्या व्यायामामुळे आपली लवचिकता वाढते आणि इतर शारीरिक क्रियांसाठी आपले शरीर तयार होते. ताणण्याचा व्यायाम 1. पोटरी ताणणे. भिंतीसमोर उभे राहा. आपले हात भिंतीवर ठेवा. उजव्या पायाने एक पाऊल पुढे जा आणि गुडघा किंचित वाकवा. भिंतीकडे पृष्ठभाग ठेवा. आपला मागील पाय सरळ ठेवा. फरशीवर टाच ठेवा. 15 ते 20 सेकंद स्थिर राहा. प्रत्येक पायाने 10 ते 15 वेळा पुन्हा करा. ताणण्याचा व्यायाम 2. बसलेल्या हॅमस्ट्रिंग्स. बसण्यासाठी टणक पृष्ठभाग निवडा. एक पाय सरळ करा. हळूहळू पुढे वाका. आपल्या मांडी, गुडघा किंवा घोट्यापर्यंत वाका. 20 ते 30 सेकंद स्थिर राहा. प्रत्येक पायाने 3 वेळा पुन्हा करा. ताणण्याचा व्यायाम 3. घोट्याचा ताण. खुर्चीच्या पुढे काठावर बसा. खुर्चीच्या खाली एक अखंड विभाग असावा. आपला उजवा पाय खुर्चीखाली आणा. ताण येईपर्यंत पाय हळुवारपणे खाली ढकला. 20 ते 30 सेकंद स्थिर राहा. मग डाव्या पायाने पुन्हा करा. ताणण्याचा व्यायाम 4. आतील मांडीचा ताण. खुर्चीच्या आधारे उभे राहा. शक्यतोवर पायात अंतर ठेवा. बाजूने गुडघे वाकवा आणि विश्रांती घ्या. 10 ते 20 सेकंद स्थिर राहा. हा व्यायाम पुन्हा पुन्हा 2 वेळा करा. ताणणारा व्यायाम 5. हिप रोटेशन. तुमच्या खुर्चीवर आरामात बसा. आपल्या उजव्या घोट्याला आपल्या डाव्या गुडघ्यावर ठेवा. आपला गुडघा ताण येईपर्यंत हळुवारपणे खाली दाबा.
10 ते 20 सेकंद स्थिर राहा. आपल्या डाव्या पायाने पुन्हा करा. ताणण्याचा व्यायाम 6. सोलियस ताण. भिंतीसमोर उभे राहा. आपला उजवा पाय डाव्या समोर ठेवा. संतुलनासाठी भिंतीवर हात ठेवा. ताण जाणवेपर्यंत हळूहळू आपले गुडघे वाकवा. आपली टाच जमिनीवर ठेवा. 10 ते 20 सेकंद स्थिर राहा. आपल्या डाव्या पायाने पुन्हा करा. न्यूरोपॅथिक वेदना व्यवस्थापित करण्यासाठी औषधासह योग्य आणि नियमित व्यायाम करणे फायदेशीर आहे. नियमित व्यायामानंतर सौम्य वेदना होणे सामान्य आहे. तथापि जर आपली वेदना अधिकच वाढत गेली किंवा आपल्याला सांध्यांची सूज येत असेल तर आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.